جب ہم پچھلی بار ایک اسلامک اسکول میں گئے تھے تو جی اس میں سب ساکن نہیں بولتے تھے، وہ سکون بولتے تھے. تو ہاں سب سے سکون. جی سکون اور ساکن میں دیکھو کیا فرق ہے، سبھی لوگ اس پر توجہ کریے گا کہ سکون اور ساکن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے سکون کہتے ہیں اس علامت کو، سمجھ گئے؟ جی مولانا صاحب. یعنی اس میں سکون کیا، لام سکون نہیں ہے، لام پر سکون ہے، یہ سکون ہے. تو یہ ہو گیا کیا بچوں، یہ ہوا علامت سکون. ٹھیک، اور لام جو ہے خود لام، یہ کیا ہوا، یہ ہوا ساکن. ٹھیک، ہاں، تو جو ہم لوگ اوپر حرکت لگاتے ہیں اس کو سکون بولتے ہیں. سکون. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ الحمد للہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد. خب السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں دیکھیں، آپ لوگ کو اس کے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حرکات، زبر، زیر اور پیش کی آواز کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج جو ہے وہ ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ساکن کی آواز کیسے نکالی جائے گی، ساکن کسے کہتے ہیں، اور ساکن جو ہے وہ کس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. ساکن. ٹھیک، ساکن کی علامت کیا ہے؟ علامت سکون. علامت جو ہے وہ نشانی یہ والا رہتا ہے جو اردو میں عام طور پر ایسے رہتا ہے، ساکن. اس طرح سے کہیں کہیں پر جو ہے وہ ایسے گولا بھی بنا رہتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے یہ ساکن اس طرح سے نشان بنا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں علامت سکون، سکون کی علامت. ٹھیک، جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو اس حرف کو کہا جائے گا کیا، ساکن ہے. جیسے الف لام زبر ال، اور جیم لام زبر کیا ہے، جل، اور ہا لام زبر حل، حل. تو یہ کیا ہے، یہ ہے لام جتنے اس میں ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہیں ساکن. ٹھیک ہے، کسی بھی کلمے کی اسٹارٹنگ، کسی بھی کلمہ کو کوئی بھی ورڈ اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ساکن سے ہم اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کبھی بھی ہم ساکن کے ذریعے سے شروع نہیں کر سکتے کوئی بات. اگر کوئی اسکول کو سین سے کہنا بھی چاہے گا تو سکول کہے گا، وہ کیا کہے گا، سکول. اسکول نہیں کہہ پائے گا وہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اور کسی بھی کلمے کو ہم سکون سے شروع نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی حرکت اس کے پہلے آنی ہی پڑے گی. حرکت والے حرف سے ہی شروع کیا جائے گا اپنی بات کو، اپنے کلام کو، کسی بھی چیز کو. اب سوال یہ ہوتا ہے، جی سب ایک سوال پوچھے؟ جی جی پوچھیے، بالکل. ہمارا سوال تھا کہ اگر ہم لوگ اسکول لکھیں گے تو سین لکھیں گے، اس کے اوپر پیش، اور کاف جب لگائیں گے تو کاف کے اوپر ہم لوگ ساکن ڈالیں گے، ہے نا؟ لیکن وہ تو پھر وہ ہو جائے گا نا، یہ ہے اسکول، یہ ہے ٹھیک. سکلون. اسکول اردو میں ایسے اسکول،
कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम बिना अलिफ के, चूंकि इंग्लिश में इस नहीं लिखते, एस रहता ना, तो सोचते हैं सकूल हो जाएगा। तो सकूल नहीं होता वो। जब आप सकूल भी बोलेंगे तो इस सीन अब साकी नहीं रहेगा, अब सीन पर क्या हो जाएगा, जबर हो जाएगा। अगर आप ई हटा भी दिए तो सकूल बोले ना, सकूल, है ना, जी। सकूल हो गया ये। तभी ये स्कूल होगा जब इसके पहले अलिफ जेर ए हो, तब ये सीन खुद ब खुद साकिल बोलना ही पड़ेगा, इस स्कूल। ठीक है। वही, लेकिन अगर जैसे कि हम लोग फिर स्कूल यानी बिना अलिफ के नहीं लिख सकते। हाँ, यही कहने का मतलब है, बिना अलिफ के, और वो भी अलिफ जेर यानी हरकत वाला अलिफ। तो जी कोई भी मौलाना साहब। कलमा बिना हरकत वाले हर्फ के स्टार्ट नहीं नहीं होता। हो सकता अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में। ठीक। या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, बहुत से लोग मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हरकत। अच्छा, अब क्यों और इसको एक और हरकत। हाँ, कि हमारे जो ये लेकिन, हाँ भी लेकिन रहते करेक्ट, लेकिन हरकत नहीं है ये हरकत के मुकाबले वाली चीज है सुकून, जो अपोजिट ऑफ हरकत है। सुकून जो है वो क्या है, अपोजिट ऑफ हरकत। हरकत नहीं, हरकत जबर जेर और पेश, जिस चीज पे हरकत ना होगी उस पे क्या होगा, उस पे होगा ये सुकून। हरकत का मतलब है चलना, और सुकून का मतलब क्या है, ठहर जाना, है ना। जी मौलाना साहब। जी मौलाना साहब, और दो चीजें बोलनी थी हमको। पहली तो हाँ, ये, इसका मतलब कि जो ऊपर जैसे ये जो अभी अभी दाल। एक मिनट, अभी अपना सवाल रोको, अभी रोके रहना, ठीक है, यानी लिए रहो अपने, अभी हाथ में रखो, सवाल को पकड़े रहो कस के। अभी ये जी वाली जो मौलाना आपने सवाल किया, पहले मैं इसका जवाब क्लियर कर दूं, ताकि ये तो बात सबको समझ आ जाए कि सुकून साकिन का मतलब क्या हुआ। और इसी तरीके देखो, इसको हम कहेंगे फतहा अरबी में, जबर या साहब। फतहा। ठीक। फतहा, अरबी में कसरा। ऊपर जो जबर, उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे फतहा। लेकिन जीम जो है जिसके ऊपर जबर लगा, उसको फतह नहीं कहेंगे कि जीम फतह है, जीम पर फतह है। खुद जीम क्या है, जीम को कहते हैं मफ्तूह, जिस पर फतहा लगा हुआ है। ठीक है ना, जिस पर फतहा लगा हुआ है वो मफ्तूह। जी। सादी जबान में क्या होगा बच्चों वाली, कि भैया ये जो है ये जबर की अलामत है, और जीम वो हर्फ है जिस पर जबर लगा हुआ है। खुद जीम जबर नहीं है, जीम पर जबर है। ठीक है ना, जीम पर जबर है, खुद जीम जो है वो जबर नहीं है। बात समझ में आ गई है, चलिए अब अपना सवाल करिए। जी मौलाना साहब, दो चीज ये बोलनी थी कि तो इसका मतलब कि जैसे कि सुकून जो होता है वो उस दाल जैसी अलामत को बोलते हैं, जो हाँ, दाल अभी जो जैसी। बताया। हाँ, और जो साकिन होता है, इसका मतलब जिसके ऊपर सुकून लगा है। लगा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, तो यानी वो क्लियर हो गया, इसका मतलब जो मैंने अभी बताया है ना। जी मौलाना साहब। और एक अच्छा और जी। चीज, क्या बोलते हैं, जो दाल जैसा होता है, ये सही वाला है या फिर वो जो गोल वाला एक आता है दोनों सुकून, वो दोनों सही? दोनों दोनों, कुछ ये रस्मुल खत यानी राइटिंग जो है वो अलग अलग तरह की राइटिंग होती है। ठीक है, लिखने का तरीका, कहीं पर जैसे ईरान वाले में कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, कहीं पर किसी में ये दोनों तरीके से आता है ये। बाकी और कुछ बारीक फर्कों को तजवीद में जब बहुत आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कहीं कहीं पर ये अलग से किसी और काम के लिए आता है, वो बाद में वहां पे आएगा। अभी ये कि इस तरह की दोनों अलामत सुकून के लिए यूज की जाती है। ठीक है। जी मौलाना साहब। हम्म। अब देखिए क्यों कहते हैं एक को हरकत, क्यों कहते हैं एक को सुकून, क्यों कहते हैं, तो आज यानी एक तरह से हम लोग समझेंगे कि हरकत, ठीक, और ये हरकत जो है वो क्या है, वो अपोजिट है। बिल्कुल, किसका अपोजिट है, ये अपोजिट का एक तरह से निशान होता है अरबी मंतिक में। ये किसका अपोजिट है, ये अपोजिट है हरकत का, है का, सुकून का। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए, एक आदमी जो है भागा जा रहा है, ठीक, जी। जी मौलाना। ठीक है, ये भागा जा रहा है एकदम फटाफट, और एक जो है वो क्या है, वो तो पीछे पीछे भाग रहा है। ये ये भाग रहा है, खड़ा है मेरे भाई, जी मौलाना साहब। खड़ा है ना। तो जी। कुछ फर्क है ना, ये है सुकून, ठीक, और ये जो भाग रहा है ये क्या है, ये है, हरकत। हरकत। ये है हरकत। हरकत। इसीलिए ये बताओ, जो चल नहीं पाएगा, जो रुका रहेगा, अभी देखिए आप लोग देखिए कौन वाला हर्फ चल रहा है, कौन वाला रुका है।
जैसे आप कहिए मकतब, क्या कहें? मकतब और तब। अब आप लोग देखिए, सुकून और हरकत का मतलब क्या होता है, कैसे हर्फ चलता है और ठहरता है। देखो मैं बोल रहा हूं मकतब, मकतब, कुछ लग रहा है कौन वाला चल रहा है, कौन वाला रुका है? जी मकतब, जी कौन कौन रुका हुआ? हाँ, ठीक है। तो मक, काफ पे जाके रुक जा रहे हैं हम, मक। लेकिन माँ चल रहा है, माँ आगे बढ़ रहा है, मीम को ये जबर काफ में जाके मिला दे रहा है, मक। लेकिन काफ बेचारा रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा किसी में, तो रुक गया वो, इसीलिए इसको सुकून कहते हैं, मक तब। अच्छा तो इसका मतलब कि इसमें जब सुकून है तो इसलिए मकतब बोले, वरना अगर इसमें सुकून नहीं होता तो मकतब या फिर मकूतुब या फिर हाँ, कुछ भी मकीतब बोल सकते हैं उसको, वेरी गुड। तो ठीक है, कंटिन्यू तो हो। मक तब हो गया ये। तो ये दो जो हैं, देखो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए सुकून वाले हैं, ठीक, ऐसे सुकून। और ये जो है, ये क्या है, ये हो गए एच। एच, हरकत वाले। म, म चल रहा है म, लेकिन का नहीं हो, मक, मक तब। अच्छा, अब ये बताओ, जिसकी गाड़ी खड़ी हो गई वो अपने से जा पाएगी या कोई उसे पीछे से धक्का लगाएगा? धक्का लगाया। वो तो धक्के से चलेगी ना, खुद से चल नहीं पाएगा। यही हाल है सुकून का। सुकून बेचारा कभी अलग से वो नहीं पढ़ा जाता, सुकून हमेशा अपने पहले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, जी मौलाना अपने। साहब। हाँ, यानी इसको बोला जाएगा मीम काफ जबर, मीम काफ जबर मक, ता बा, ता बा जबर तब, ऐसे मिला के पढ़ा जाता है। यानी सुकून हमेशा अपने पहले वाले हरकत का हिस्सा होता है, जुज होता है। जैसे लाम है, तो हल मिन अगर लिखा है तो हम ये नहीं कहेंगे हा जबर हा, लाम साकिन मीम देर, लाम साकिन मीम देर में लमे, नहीं। हा लाम हमेशा हल के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, अपने पहले वाली हरकत के साथ, हल, हल मिन। तो जो साकिन है वो अपने पहले वाले के साथ मिलकर एक हिस्सा माना जाता है। समझ में आई बात? जी साकिन अकेली मौलाना। कुछ नहीं है, अपने पहले वाले के साथ मिलकर क्या माना जाएगा, उसका एक हिस्सा माना जाएगा, कलाम का एक हिस्सा माना जाएगा, एक जुज माना जाएगा। तो अब जैसे हल क्या है, ये लाम हल के साथ, हा के साथ मिलके एक हिस्सा, तो हल। मीम नून जेर मिन, ये एक बॉक्स में आएगा। लेकिन अगर हम मकतब को हम देखिए, अभी जो चलने वाले हरूफ हैं वो अलग अलग बॉक्स में लिखे जाते हैं, अलग अलग जुज होते हैं। जैसे कतबा है, आप बोलते हैं ना, क, क, त, ब, कतब, कतब, कतब। समझ में आ रहा है सबके ना, नहीं समझ में आ रहा है? जी मौलाना साहब। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, जिसको समझ में ना आए पूछिएगा। कतब थोड़ा सा आज डिफिकल्ट है, कतब। अब ये क त ब सबको अलग अलग आप पढ़ सकते हैं, क त ब, इसलिए इसके तीन हिस्से बनते हैं। इस कलमे के कितने हिस्से बनेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। हर हरकत तीन। अलग अलग है, तो हम इसको तीन तीन हिस्से। खाना बनाएंगे। जैसे काफ जबर मौलाना क, साहब, जैसे कि आपने बोला था कि जब सुकून होएगा तब हम लोग क्या बोलते हैं उसका पाठ करेंगे ना। बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, वही तो बताया हूँ अभी प्यारे बच्चों, वही चीज समझाना चाहता हूँ अभी। हिस्सा तो हर हर लफ्ज का कोई ना कोई हिस्सा तो बनेगा ना, किसी से जब मिल के बना है तो अलग भी उसको किया जाएगा। तो ये बताया जा रहा था कि जो सुकून होता है उसका अपना कोई हिस्सा नहीं बनता, वो अपने पहले वाले के साथ मिलकर एक माना जाता है, एक हिस्सा बनता है। समझ जी में आई बात? मौलाना साहब। और जो हरकत वाले हैं वो सब खुद अपनी जगह पर क्या है, एक हिस्सा माना जाता है। जैसे यानी हिस्सा का मतलब क्या, यानी पढ़ने में, जैसे क, आप इसको पढ़ सकते हो, क अलग, क त ब। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सब लोग पढ़ के बोलो, क, बोलो, त क। खींचना नहीं, कोई खींचा तो खैरियत नहीं होगी, समझ लेना सब लोग, खींचना नहीं, जबर है, क शॉर्ट साउंड, छोटी आवाज, क ब क त त ब ब, ब कतब, ब ब कतब,
तो ये 3 हिस्से में हुआ कि नहीं, क त ब। लेकिन 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 आप क्या इसको 4 हिस्से में करके पढ़ सकते हैं? मकतब को 4 हिस्से में करके पढ़ सकते हो इसको? कैसे? नहीं मौलाना साहब, नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हरूफ पे क्या बोलते हैं साकिन हो, वो अपने आप में कुछ नहीं होता। हाँ, वो किसे मिलाकर पढ़ा जाएगा? पहले वाले से मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो अगर मकतब का हिस्सा करना चाहें और इसको अलग अलग बॉक्स में रखना चाहें, तो अभी हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों? 2 वेरी गुड, जीनियस स्टूडेंट्स। पहले हिस्से में क्या लिखूं मैं? पहले में लिखूंगा मक, मीम काफ जबर मक, एक हिस्सा बना। बोलने में भी देखो, लिखने का मसला नहीं, बोलने में भी आ रहा ना। हम म का अलग से नहीं, का अगर बोलेंगे जबर हो जाएगा। साकिन तभी ये रह पाएगा जब इसको पहले वाले से मिलाएं। मक। और दूसरे वाले हिस्से में क्या लिखूं? तब वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तब जबर तब। अब हुआ ये क्या, ये मक तब। तो यहां से हमें क्या, अब यहां पे देखिए इसमें कितने हर्फ थे इसके अंदर? सिर्फ 3 हर्फ थे, 3। और बॉक्स कितने बने इसके अंदर? 1 2 3। लेकिन इसमें कितने हर्फ है सब मिलाकर? 4 4 लेकिन बॉक्स कितने बने? 2 1 2। हर्फ ज्यादा लेकिन बॉक्स कम, क्यों? इसलिए कि इसमें 2 ही ऐसे हैं जिस पर हरकत है, और 2 ऐसे हैं कि जिस पर क्या है? साकिन है। ये हैं है वाले, और ये हैं, ये सब एस वाले। ठीक है, तो इसको कहते हैं साकिन और हरकत। इसीलिए इनकी जो मिसालें होती हैं, इसमें हमको तवज्जो करना चाहिए। कुछ लोग फंस जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें, तो पढ़ने का भी तरीका यही है। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे भी ऐसे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कुरान में, इसको देखते हैं कि किस तरह से वहां पर आता है और वहां पर कैसे पढ़ा जाता है। तो आज जो हमने सीखा अभी तक में, वो ये सीखा कि साकिन जिसके ऊपर ये अलामत सुकून हो, अलामत सुकून ये वाली अलामत है, जिसके ऊपर ये अलामत सुकून हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? जिसके ऊपर ये अलामत हो उसको बोलेंगे सा साकिन। और इस अलामत को, खुद इस अलामत को क्या कहेंगे? सुकून। सुकून। ये अलामत सुकून है। ठीक, अलामत सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर आ जाइए, जैसे लाम के ऊपर आ गया, बा के ऊपर आ गया, तो ये सब क्या है? इन हर्फ को कहा जाएगा, हरूफ को, कि ये सब क्या है? साकिन है। और जो साकिन होगा वो हमेशा अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? तो जो साकिन हर्फ होगा उसको अपने बाद वालों से मिला के पढ़ा जाएगा बच्चों, या अपने पहले वाले से मिला के पढ़ा जाएगा? पहले वाले से। अच्छा, जितने भी हरकत वाले हैं वो अलग अलग बॉक्स में रखे जाते हैं, या उनको वो किसी के साथ रखे जाते हैं? किसी की जरूरत पड़ती है अलग हरकत अलग बॉक्स में रखे जाते हैं। अलग अलग। और जो साकिन होता है, क्या उसको हम अलग बॉक्स में रख सकते हैं? अलग तरीके से पढ़ सकते हैं अलग हिस्से में? नहीं रख सकते। हमेशा उसको किसके साथ हमें पढ़ना होगा? उससे पहले वाले हरूफ के साथ। उसके पहले वाले हर्फ के साथ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुरान मजीद के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से हम वहां पर साकिन को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए देखें, कोई सूरा निकालते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए। सूरह ठीक है, मान लीजिए कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में चलते हैं। ठीक है, तो कुल कुल है। अब देखिए बोलने में कैसे फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ता है कि नहीं? कुल लग रहा ना कि लाम पे हम सुकून कर रहे हैं। कुल अ उ
او تو واو ساکن ہو گیا. زو بی رب بل, ٹھیک ہے, رب رب تو اسی با بھی پہلا والا ساکن ہے. بل فلق, اگر رکیں گے تو فلق کر دیں گے, فلق ہو گیا. اچھا من, دیکھ رہے من. البتہ یہ بتا دیں آپ لوگ کو کہ بہت سی جگہ پہ ساکن پر اگر ہر جگہ ساکن کی علامت لگائیں گے نا تو بہت ڈھیر ساری, چونکہ ساکن تو جس پہ کچھ نہیں لگا سمجھ لو وہ کیا ہے, یہاں پر وہ ساکن ہے. ہاں, چونکہ پھر اس پہ اتنی علامتیں لگ جائیں گی ہر جگہ پر کہ حرف کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو انسان کا سینس جسے سمجھ لیتا ہے اس کی علامت جو ہے وہ عام طور پر جو قرآن لکھنے والے لوگ ہیں یا ٹائپ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں, سمجھ جائے گا آدمی. تو یہ سیدھا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ من, لیکن بولنے میں لگ رہا ہے کہ نون جو ہے وہ الگ سے کوئی حصہ نہیں بلکہ نون میم کے ساتھ مل کر ایک حصہ بنے گا, یعنی ہم بولیں گے من من. ایسی شرری. اب یہ جو ہم شر کہہ رہے ہیں نا, اس میں بھی چونکہ دو رے ہے تو پہلا والا کیا ہے ساکن, اس لیے شر پہ ہم کو رکنا پڑتا ہے ذرا صحیح. شرری شرری, چونکہ تشدید میں یہی ہوتا ہے, انشاءاللہ تشدید بھی بتائیں گے. وَمِن پھر آ گیا من تو نون ساکن ہو گیا. وَمِن شرری شر, غا غین علی زبر غا, رک گئی آواز غا پہ جا کے. فقن اذا ذا وقب, اگر ہم رکتے ہیں وقف کرتے ہیں تو وقب. ومن شرن رن رانون زر رن, تشدید جتنی بھی ہوتی ہے نا تشدید یہ جس حرف کے اوپر بھی ہوگی وہ دو حرف ہوتا ہے وہاں پر, ہے نا. تشدید جس کے اوپر ہوتی ہے وہ کیا حرف ہوتا ہے, وہ دو حرف ہوتا ہے. ٹھیک, پہلا اس میں جو رہتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرے والے پہ حرکت ہوتی ہے, چاہے زبر چاہے زیر چاہے پیش. اب آپ کسی پہ بھی دیکھیں جیسے شرری شرری, یہ اصل میں دو رے ہے. ٹھیک, پہلا رے ساکن دوسرے پہ زیر. رن رنف رنف رن, نون ساکن ہوا کہ نہیں یہاں پہ, تو یہ پہلا والا ساکن دوسرے والا نف. پھر فے بھی دیکھیے, فے بھی دو فے ہے. نفا نفا نفا, تو نف یہ جو رکے ہم نف کیوں رکے, نف یہاں تو ساکن دکھ نہیں رہا, نہیں. تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو یہ دو حرف ہیں ان میں پہلا والا ساکن ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر. نفا ساتی فل, فل میں بھی دیکھیے فل ہو گیا, فل رک گئے تو اسی لیے ساکن اس کو کہتے ہیں, حرف کو رک جاتا ہے آدمی وہاں پہ. فل اقد اگر رکتے ہیں. ومن شرری حاسد, ہاں. اب یہ دن میں بھائی, یہ دن میں ہم کیوں رک رہے ہیں, دن چونکہ دن بھی یہ تنوین بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے, آخر میں کیا لاسٹ میں نون ساکن ہے. حاسی دن دن, یہ بھی سکون میں ہے. اذا حسد. تو انشاءاللہ سب کو ساکن کی بحث جو ہے بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کیا ہے. کوئی پرابلم تو نہیں ہے بچوں؟ نہیں مولانا. چلیے اوکے, چلیں خدا حافظ, فی امان اللہ. پیارے بچوں التماس دعا, خدا حافظ. جناب حسین سے اتنے قریب تھے کہ آواز دے رہے تھے میرے لال علی اکبر, کاش تم سارے بے اولاد.